Welcome to third lecture on Laplace transformation. In this lecture we are going to discuss the second property of Laplace transformation. The previous lecture we have discussed the standard formulas of Laplace transformation and linearity property with examples. So the link is given in the description box, and also you can click on the icon to refer previous videos. So second property is change of scale property. In change of scale, we are changing this variable t. That is, if statement is if Laplace transformation of f of t is equals to f of s bar. Here we have given Laplace transformation of f of t, that is Laplace transformation of f of t is f of s bar. Then Laplace of f of a into t is equals to 1 upon a f of s by a bar. That means if in this statement if we replace t by at, then corresponding changes in our answer is we get the 1 upon a function is replaced by s by a. So we have to prove this property, and this property is important. We get direct answer of our question which contains, if you know the standard formula and we want to find any term which t is multiple of any constant, then we can use this property. So let's start to prove this property. तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करके दिखाना है. वी हैव टू प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एफ बार ऑफ एस बाय ए. अब इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करने के लिए हम जस्ट डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. तो कोई भी प्रूफ अगर आपको करना है तो जस्ट डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए. डेफिनेशन से ही हमें क्या मिलते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ. तो देखो किस तरह से करोगे. So here use definition of Laplace transformation, that is Laplace of f of t is equals to integral 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt. ये हमारी डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए सपोज वी टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी. अब दोनों को अगर डेफिनेशन और इस टर्म को कंपेयर करोगे तो जस्ट फंक्शन चेंज हुआ है. यहाँ पे एफ ऑफ टी है, उसके जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ ए टी है, तो सेम डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी. तो क्या रहेगा इसका, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी. अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ है, ये जो हमने लिखा हुआ है लैप्लास, इसी के इक्वल्स टू में क्या है, ये गिवन क्वेश्चन में ही गिवन है. इट इज़ ए एफ ऑफ एस बार, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस बार. तो इसके लिए ये वाला टर्म होता है. बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सिंगल वेरिएबल है टी, उसी का डेरिवेटिव है यहाँ पे डी टी. और इस क्वेश्चन में कैसा है, ए टी गिवन है वेरिएबल. तो हम क्या करेंगे, दो टर्म है तो इसको न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे. Suppose we put at equals to, we take new variable, assume कीजिए it is a p. If we replace our t variable with p, then we have to convert t equals to p by a. A is our constant, t is variable, and at we are replacing with p. That means we are replacing t with new variable p. So we have to convert dt also in the form of p. So here dt, differentiate this term to dt equals to 1 upon a t p. And we have to also convert this limit corresponding to p. But here see, if we put t equals to 0, here we take t equals to 0 and we put t equals to 0 in this term, then we get p equals to 0. That means if our t is 0, then we get p equals to 0. Similarly, if our t tends to infinity, if we take t tends to infinity, then we get p also tends to infinity, because here this term is in the product form, so ultimately we get infinity. So here
If t tends to infinity, then we get p tends to infinity. Now put this value in our integration, then we get integral 0 to infinity, limit as it is because p varies from 0 to infinity, e raised to power minus s t is our p by a, t is our p by a, so here p by a f of p dt is our dp by a, dt is our 1 by a dp, so here 1 by a dp. Now here 1 upon p is constant, 1 upon a, now here 1 upon a is constant, we take outside the integral, remaining is integral 0 to a, 0 to infinity, e raised to power minus p by a f of p dp. अब देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रूफ है, अगेन हम डेफिनेशन के ऊपर ही चले जाएंगे. देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है उसी से जाते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज ई रेस्ट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. ये आप टी से इंटीग्रेट कर रहे थे, तो रिमेनिंग जो फंक्शन मिल रहा था आपको वो किसका था, एफ ऑफ एस बार. तो टी को छोड़ के जो ई के पावर में बच रहा है उसका वो क्या था, फंक्शन. ठीक है. अब देखिए जो हमने प्रूफ निकाला हुआ है उसमें क्या हो रहा है, ये एफ ऑफ पी डी पी मतलब पी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी पी है और ई के पावर में भी पी कंटेन है, और कांस्टेंट कौन हो गया, एस बाय ए. तो अगर हम पी से इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये पी ई के पावर में एफ ऑफ पी डी पी, तो फंक्शन किसका रहेगा, ये कंपेयर करके डेफिनेशन से इट इज़ फंक्शन ऑफ एस बाय ए, क्योंकि ई के पावर में यहाँ पे क्या है, एस बाय ए होल बार. ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या आ गया था, ई के पावर में माइनस एस टी था, तो एफ ऑफ एस बार आ गया. यहाँ पे ई के पावर में, ये ई के पावर में एस बाय ए कंटेन है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एस बाय ए आएगा. ये हो गया हमारा प्रूफ, दैट इज इट इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर ये होगा प्रूफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Laplace transformation of sin t is equals to 1 upon s square plus 1. Then find Laplace transformation of sin 4t using change scale property. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या किया है, हमारे पास में Laplace of sin t ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1 upon s square plus 1, और हमें डायरेक्टली किसके आंसर निकालना है, sin 4t का. तो हम अभी इसके लिए सॉल्व नहीं करते, तो क्या करेंगे, हमें जस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, दैट इज चेंज स्केल प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी है. तो लेट्स सी हाउ टू यूज़ द प्रॉपर्टी. यहाँ पे हमें ऑलरेडी लैप्लास ऑफ साइन टी गिवन है, तो लैप्लास ऑफ साइन टी अगर हमारे पास में है तो सपोज ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. लैप्लास ऑफ साइन टी इज़ 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1. अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपका कोई फंक्शन है जिसका लैप्लास है एफ ऑफ एस बार, और उसमें अगर आपने टी वेरिएबल को, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है, अगर टी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव टू टेक 1 अपॉन ए, और इस फंक्शन के अंदर ये जो आंसर है उसमें एस को रिप्लेस कर दो एस बाय ए से, तो ये होता है हमारा आंसर. अब नाउ यूजिंग दिस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी we take Laplace of sin 4t. तो ये sin t था, इसमें t को रिप्लेस कर दिया a इंटू टी, तो a मतलब हमारा कितना है यहाँ पे 4. सो हियर 1 अपॉन 4, 1 अपॉन हियर 1 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन a के जैसा, और f ऑफ s, तो f ऑफ s की वैल्यू कितनी हमारी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. तो हियर 1 अपॉन s is replaced by s by a, तो s by 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1. क्लियर.
क्योंकि हमारा एफ ऑफ एस जो था वो था 1/s² + 1। अब इसी टर्म में हमने क्या कर दिया है, s को रिप्लेस कर दिया है s/4 से, क्योंकि हमारा कांस्टेंट a कितना है 4। तो s को अगर s/4 से रिप्लेस करोगे तो ये होगा 1/s/4, ये स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर +1। नाउ इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। सो हियर a²/4² + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म, तो हियर after cross multiply we get this term, and here 1 4 get cancel with this term, so here 1 4 get cancel and here term is shifted to numerator, then we get 4/s² + 4², that is nothing but Laplace transformation of sin 4t। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर and subscribe.